Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Yes, ma'am. Thank you. So, in OOP-CGL, there are two parts. Part 1 is regarding object-oriented programming, and part 2 is regarding computer graphics. Okay. Part 1 में object-oriented programming के related assignments हैं, और part 2 में computer graphics related. So, in part 1, total 7 assignments are there. Okay. And in part 2 also 7 assignments as well as one mini project is there. Now, this is your group A. In this one, first assignment is what? Today we will see first assignment. You have to practice this assignment and you have to also submit this assignment on the classroom. Implement a class complex which represent the complex number data. Implement the following. There are 4 things you have to implement. First, you have to construct, use the constructor, including default constructor, which creates the complex number 0 plus 0i. एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है जो डिस्प्ले करेगा रियल की वैल्यू 0 और इमेजिनरी की वैल्यू भी 0. ओके. देन ओवरलोड ऑपरेटर plus to add complex number. Then overload operator multiplication to multiply two complex number. And overload operator insertion and extraction to print read complex number. Okay. तो गाइज हम लोगों ने एक सेपरेट प्रोग्राम मैंने आपको एज अ होमवर्क बोला था जिसमें इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपको ओवरलोड करना था. ओके. That is, we can use this operator overloading with friend function. और friend function कब यूज करते हैं जब दो क्लासेस हम यूज दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास. एक है मतलब दूसरे क्लास का और एक है दूसरे क्लास का. So to access the member of to access the private members of a class, we use friend keyword. To access private member of a class, we use friend keyword or friend function. तो इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ओवरलोडिंग का पार्ट आपने परफॉर्म किया है. ठीक है. अब तक हम लोगों ने जितने भी असाइनमेंट्स किए हैं that assignments are not actual our assignments included in OPCGL syllabus. Okay. Whatever we perform that are just practice assignment. That assignments we perform for only the practice purpose. So OP assignment 1 overloading operator plus and multiplication. तो यहाँ पे सभी ऑपरेशंस हमें परफॉर्म नहीं करने हैं. ऑपरेटर्स सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इस असाइनमेंट में क्या क्या टास्क इन्वॉल्व होंगे दिया है स्टेटमेंट में. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है
default constructor to create complex number. Okay. मैं आज बस प्रैक्टिकल में आपको इसका लॉजिक और थोड़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताने वाली हूँ. You have to practice it and you have to submit it. Okay. ज्यादा 2 घंटे का प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ जो मेन थिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला है 0+0i आपको डिस्प्ले करना है. ओवरलोडिंग द प्लस ऑपरेटर टू ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवरलोडिंग मल्टीप्लीकेशन, ओवरलोडिंग दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. मैंने बोला था यहाँ पे उल्टा है, दिस इज extraction operator and this is insertion operator. हमें कुछ वेरिएबल्स लगेंगे C1 and C2. C1 for first complex number, C2 for second complex number, and addition we are going to store in this C3 complex number, C3 variable. So multiplication of it, then Cin should input complex number from the user. हमें complex number जो है input वो user से लेना है, और C out that is it should be complex number on the screen. It should display output complex number on the screen. इसमें हमें C out जो है हमारा यूज करते हैं हम, that is object of which class. C out is an object of OStream class. अभी 4th यूनिट में आपको क्लास हायरार्की है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा. हाउ दिस OStream class OStream class have this object C out. This seen as object of iStream class. ठीक है, seen iStream class, C out, OStream class. We must overload these operators as a global function. तो ये हम ये जो ऑपरेटर्स हैं उसको हम ओवरलोड कर रहे हैं. We want to allow them to access private data members of class. अगर हमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स एक्सेस करने हैं तो उन्हें हम फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे. सो वी विल मेक देम फ्रेंड फंक्शन. ठीक है, तो आगे कोडिंग में वैसा हम फ्रेंड कीवर्ड यूज करके फंक्शन लिखने वाले हैं. जनरली सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. उसमें रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होता है. एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो इजी. रियल पार्ट का एडिशन करते हैं और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर हमारे पास 1+4i और 5+i ये 2 नंबर्स हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सी हियर, 1 multiply with 5, 1 multiply with I. Okay, then 4i multiply with this 5, this 4i multiply with this I. तो ये यहाँ पे इसको एक्सपांड किया है मल्टीप्लीकेशन. फिर ये 5 plus I, this is 20i and this is 4i square. 5 plus 21i, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है 20i एंड i 21i हो जाएंगे. 5 ऐसे ही रहेगा और ये i स्क्वायर है. तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. तो i स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करते हैं. ओके, 4i स्क्वायर और इसको -1 लिखा, फिर -1 लिखने के बाद ये आपका मल्टीप्लीकेशन आया. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये बताने का ये पर्पस है कि
सपोज डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स है तो उनको मैथ्स हुआ ही नहीं होता है 12th में, डायरेक्टली 10th के बाद वो डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करते हैं। तो उनके लिए 3-4 साल का गैप है, उसमें ये भूल जाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया है। ओके, तो सब स्टूडेंट, बाकी के स्टूडेंट बोलेंगे कि इतना इजी पार्ट क्यों समझाया जा रहा है। ओके, दिस इज आवर प्रोग्राम। पहले मैं आपको Ma'am, एग्जीक्यूट कर, हाँ। हम्म। some students are waiting. Please take them in. ओके, जस्ट अ मिनट। क्या होता है, कोई जल्दी मतलब एडमिट हो जाते हैं, लॉग इन करते हैं, और बाकी के बहुत सारे स्टूडेंट लेट ज्वाइन होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऑनलाइन कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। फिर थोड़े देर वेट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने के बाद जो भी स्टूडेंट एडमिट होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं वो डिस्प्ले नहीं होता है। ओके, और जो पहले से ही एडमिट हो गए वो बोलते हैं कि कितना कितना देर तक मैडम वेट करवा रहे हैं, इसलिए दोनों साइड से सोचना पड़ता है। ठीक है, अभी एग्जीक्यूट करेंगे ये प्रोग्राम। दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। First, construct including a default constructor which creates the complex number, then overload plus operator। ओके, एग्जीक्यूट हो गया है, रन करेंगे इसको। नो एरर, नो वार्निंग हियर, सो execute this one। enter your choice। आपको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम ही बनाने का है, उसे अंडरस्टैंडिंग। यस, जो मैंने क्लासरूम पे सेंड किया है उसमें क्या। हाँ मैंने हाँ वो भी बोला था, और क्लासरूम पे भी मैंने ग्राफिक्स फाइल, हाउ टू डाउनलोड ग्राफिक्स इन डेव C++, वो भी सेंड किया है। तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या। चलेगा, नहीं तो क्या करो फिर आप गूगल या फिर यूट्यूब पे जो है ना, वो ट्राई करो। यहाँ पे नोट पैड्स में मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे थे, ग्राफिक इंस्टॉलेशन स्टेप्स।
वो मैंने वीडियो देख के ये सब पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। लेकिन ये सब मुझे ही समझ में आ रहा है, मतलब उसमें बहुत सारा कॉपी पेस्ट ज्यादा है। और कौन से फाइल में, कौन से फोल्डर में कॉपी करना है? सी, copy above files to template folder of dev C++. Then second, copy above files to program files where this dev cpp is present. Okay. So first enter your choice. 1. My choice is 1. See, it will display 0 plus 0j, 0 plus 0j. Okay, this is first complex number and this is second complex number. तो स्टेटमेंट में दिया है कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा वो रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। सौरभ, ओके सेकंड, हाँ सेकंड एंटर योर चॉइस। सेकंड हमारा जो चॉइस है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो एंटर योर चॉइस सेकंड, मतलब आपका आउटपुट ऐसे आना चाहिए, इसलिए मैं एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ। ओके, एंटर रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट दूंगी 1 और इमेजिनरी पार्ट दूंगी 1। ओके, एंटर रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो ये मैं 2 is my real part and second 2 is my imaginary part. तो ऐसे आपको एंटर करना है। So it will just display whatever you entered, that is first complex number 1 plus 1j, second complex number 2 plus 2j. Okay, now my third choice is addition. So enter your choice. अभी third choice चेक करेंगे तो इसका एडिशन क्या होगा? 2 plus 1 3 and 2 plus 1 3, 3 plus 3j. So it will show addition here. Addition is 3 plus 3j. Okay, then 4, enter your choice multiplication. So multiplication of these two number is 0 plus 4j. Okay, तो आप कैलकुलेट करके देखो ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, एंटर योर चॉइस। आई विल एंटर 5 नंबर, so it will exit from this window. Sorry, 5 is display complex number. So sorry, so complex number 1 plus 1j and complex number 2 is 2 plus 2j. Addition is 3 plus 3j. Multiplication is 4j. Okay, multiplication is 4j. तो 5th नंबर पे हमें डिस्प्ले करना है ओवरऑल आवर रिजल्ट एंड 6th choice is exit. So 6 exit. So this is our main function. In main function there is an integer choice. To enter the choice from user, मैं जो 1 2 3 choice enter कर रही हूँ उसके लिए ch variable है. Then c1 c2 c3 c4, these are the variables for different purposes like complex number 1, complex number 2, then to store the addition.
C4 किसके लिए यूज किया वो देखेंगे आगे. Then float. Float is what? We are using float data type for real one and imaginary one, real two and imaginary two. तो ये जो वैल्यूज हम देने वाले हैं 1 plus 1j, for that purpose we are using this one. Then this is our menu: default constructor, parameterized constructor, addition, multiplication, ये सब choice. Enter your choice. We use this choice using by reading this ch variable. स्विच केस यूज करना है क्योंकि हर एक केसेस पे क्या होना चाहिए, अगर मैंने 1 एंटर किया तो क्या होना चाहिए. ओके, सो केस वन हमारा क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. ओके, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सी आउट C3 डिस्प्ले करना है, फिर उसके बाद C4 डिस्प्ले करना है. वी विल चेक व्हाट इज आवर default constructor. So basically we are using this complex class, real and imaginary part. Then in this one, here is our complex. What is this? This is default constructor. Default constructor. ओके, कमेंट में आपको हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग लिख के रखो. इट विल हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड. दिस सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज व्हाट? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. स्टेटमेंट में बोला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज फॉर टू डिस्प्ले 0 plus 0i वैल्यू. ओके, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज किया है? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्प्ले करने के लिए. ठीक है. देन void display function, this is our normal function. Then we are using operator overloading for plus and operator overloading for multiplication. So this complex is return type. We have to write the return type first, then operator keyword, and then that symbol. Okay, we are using here insertion and extraction operator overloading also. So we are using this operator insertion and extraction outside this class, and to access the member of this class complex we need to declare it as a friend. Okay, so friend keyword, then iStream is the class name. Okay, and it is a reference for the operator. This is extraction operator. Okay, in that one we need two parameters. Okay, this C out or C in, these two objects belongs to these classes. So iStream we need for C in and C out, iStream and OStream. and दूसरा जो है, मतलब हम कैसे लिखते हैं, C in C1, C in A क्या होता है हमारा? एक वेरिएबल होता है जो यूजर डिफाइंड टाइप ऑफ वेरिएबल है. मतलब मुझे लिखना है एंटर द वैल्यू ऑफ A, तो मैं उसको क्या कैसे रीड करूंगी? C in
A. Okay. So A is user defined data type. तो वो कौन से क्लास का है? वो कॉम्प्लेक्स क्लास का है. So that's why we are using here name complex. और जो सी इन सी आउट है वो आई स्ट्रीम और उसके लिए ओ स्ट्रीम. क्योंकि हम आई स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो दिस कॉम्प्लेक्स क्लास के साथ यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें उसको फ्रेंड कीवर्ड यूज करना जरूरी है यहाँ पे. ओके. सी हियर, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं है. हम यहाँ पर भी आर इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो मैं यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकती हूँ. ओके. हियर आर इक्वल टू जीरो एंड आई इक्वल टू जीरो तो भी एरर नहीं आएगा. लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए प्रोग्राम की हमने क्लास में ज्यादा कुछ इंक्लूड नहीं किया. ठीक है, अभी ये इतना हमारा क्लास हो गया है. अगर मैं यहीं पे कॉम्प्लेक्स का कोड लिखती, फिर यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कोड लिखेंगे हम, तो ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए सेपरेटली लिखा है. सो हाउ टू राइट द सेपरेट डिक्लेरेशन आउटसाइड द क्लास यूजिंग दैट क्लास नेम. तो हम कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन कंस्ट्रक्टर. यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन कॉम्प्लेक्स इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सो आर इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो ये कब आता है? जब अब हम फर्स्ट चॉइस एंटर करते हैं तो वो डिस्प्ले करता है 0+0j. ओके, 0+0j. For that purpose we are using here value r equal to 0 and I equal to 0. Now in parameterized constructor there is a real and img variables, but this real is nothing but what this r. Real is nothing but this r and img is nothing but this I. So we are using this pointer here to explain the compiler that this r is real and this I is imaginary. देन हमारा डिस्प्ले फंक्शन है. डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या लगता है? सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है. आउटपुट में आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे आता है. आर, आर मतलब जो मैंने एंटर किया है आर की वैल्यू, उसके बाद मुझे ऐसे डिस्प्ले होता है प्लस सिंबल. कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, 1+2i. सो प्लस आता है, उसके लिए प्लस को कैप्शन में दे दो. आई मतलब हमारा इमेजिनरी पार्ट, और जे, जे मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक अल्फाबेट यूज करते हैं वो. ठीक है. फिर ये कॉम्प्लेक्स is the return type, complex is the class name, and this is the scope resolution operator. यहाँ पे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोडिंग दे रहे हैं. ठीक है. तो एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट हमें देना पड़ेगा यहाँ पे ए. टेम्परेरीली वी आर स्टोरिंग वैल्यू इन टेम्प वेरिएबल. रियल और इमेजिनरी जो दोनों जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हम एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर करेंगे. फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकेंड रियल नंबर. ओके. तो सेकेंड जो रियल नंबर है उसको हमें डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है सेकेंड रियल नंबर लेने के लिए, नॉट फॉर फर्स्ट. यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे a.r क्यों नहीं है. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट वो r से कंसिडर करेगा, बट
but to assign the second real number, we have to explicitly write here a dot r. तो यहाँ पे टेम्पररी r वेरिएबल में temp डॉट r में रियल पार्ट का एडिशन होगा और temp डॉट i में इमेजिनरी पार्ट का एडिशन होगा. ओके, और उसके बाद टेम्प वेरिएबल की जो भी वैल्यू आती है एडिशन की, वो इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे. ओके, रिटर्न टेम्प. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सेम फॉर्मूला यूज किया है. मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको भी रिटर्न किया है इन टेम्प. ठीक है, फिर ये हमारा आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम ओवरलोडिंग स्टार्ट हो जाता है. तो आई स्ट्रीम हमारा इन के लिए क्लास होगा और आउट के लिए ओ स्ट्रीम होगा. And this in and out, these are the reference variable. Complex ampersand C and complex ampersand C. So from class we are using one variable, that is C. तो ये जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है in, it will read C dot R and C dot I, and it will display C dot R and C dot I using this O stream. Means O stream means this insertion operator. और ये अपना मेन क्लास है. ओके, सो C1 इसमें C3 डिस्प्ले होगा, C out C4 डिस्प्ले होगा. दैट इज आवर फर्स्ट चॉइस. उसके बाद एंटर रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 1, तो वो R1 और I1 में स्टोर करेंगे. एंटर रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2, वो रीड होगा. देन कॉम्प्लेक्स R1 I1 एंड कॉम्प्लेक्स R2 I2. तो ये जो है ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर्स है. ये कैसे पता चलेगा कंपाइलर को, क्योंकि हमने यहाँ पे R1 कुछ पैरामीटर्स दिए हैं ना, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स के ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर्स दिए हैं. इसका मतलब है ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. देन C1 एंड C2 डिस्प्ले होंगे. थर्ड चॉइस इज एडिशन. डायरेक्ट सिंपली हमें सिंपल कोड लिखना है एडिशन वाला. C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C3, वो C3 में स्टोर करेंगे एंड डिस्प्ले दिस एडिशन. देन मल्टीप्लिकेशन stored in C4 variable. So C1 into C3 stored in this whatever the result is stored in C4. और फिफ्थ केस क्या है हमारा, क्या क्या डिस्प्ले करो फिफ्थ केस में. कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या है, दैट इज इन C1. कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या है, दैट इज इन C2. एडिशन क्या है, दैट इज स्टोर्ड इन C3. एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टोर किया है C4 में. ओके, सो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी डिस्प्ले हो जाएगा डिस्प्ले फंक्शन में. और ये हमें कब तक करना है, जब तक हमारा चॉइस 6 नहीं आता तब तक. ओके, व्हाट इज आवर 6th चॉइस, दैट इज एग्जिट. तो ये एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब ये आउटपुट ही प्रिंट किया है. सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू है हमने r इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0 असाइन किया है, तो ये प्रिंट होगा. सेकेंड है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में 2 दिया तो
वो एंटर करने के लिए बोलेगा रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू. So 5. Then enter real and imaginary value for second complex number. So पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो कोड दिया था हमने 5+5j 3+3j, due to that coding we can show here the first complex number and second complex number. Now the choice is 3, that is addition. So 5 plus 3 8 and 5 plus 3 8, so 8 plus 8j. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा और फिफ्थ पे डिस्प्ले होगा एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या आई है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ओवरऑल. एंड 6 एग्जिट के लिए कोडिंग अभी यहाँ पे ये दिया है, कमेंट में डाला है इसलिए. Okay guys, go line by line through each and every statement of this program. ये प्रोग्राम मैं अगर क्लासरूम पे सेंड करूंगी तो कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसलिए आपको खुद को एग्जीक्यूट करके देखना है. Okay guys, any query regarding this first assignment? एडमिशन का लिंक मंडे से स्टार्ट होगा ऐसे बोला गया है, लेकिन कंफर्म पता नहीं, इसलिए मैंने मे बी एक्टिवेटेड बोला है. सो यू हैव टू ट्राई टुडे टुमारो, एनी टाइम इट विल एक्टिवेट. सो डायरेक्टली पूरा असाइनमेंट एग्जीक्यूट करने से अच्छा है कि आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो पहले, देन ओवरलोड करो प्लस ऑपरेटर, देन ओवरलोड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, and then overload the operators insertion and extraction to print and read the complex number. C in और C out, हम क्या वहां पे ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज C in is the object of iStream क्लास, और उसके आगे हम A B C D कुछ भी लिखते हैं वेरिएबल, एंड दैट वेरिएबल belongs to user defined class. So there is a combination of one object of one class and user defined object of defined class. That's why we need insertion and extraction operator overloading for that purpose only. Okay guys, any query? जब आप खुद एक एक टाइप करोगे, लर्न करोगे, तभी समझ में आएगा. अभी तो ऐसे बोल नहीं सकते कि पूरा प्रोग्राम करो. ओके अभी 2:30 हो रहा है. एटलीस्ट एट 3:30 यू हैव टू फिल द अटेंडेंस फॉर्म. 3:30 को मैं ग्रुप पे कोड सेंड कर दूंगी. 3:30 को आपको अटेंडेंस फिल करना है. नहीं तो ऐसे और 1 घंटा हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम तो आपको एग्जीक्यूट करना है. आप खुद का भी अभी कर सकते हो. ओके और ग्राफिक्स फाइल लोड हो चुके हैं वैसे कुछ, मतलब किसी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है. 1 मिनट है, मैं ग्राफिक्स का एक प्रोग्राम
एग्जीक्यूट करती हूँ, जस्ट अ मिनट। जो हम लोगों ने ब्रेसिनेंस और मिड पॉइंट का ये सोर्स फाइल ओपन में जाना पड़ेगा। मिड पॉइंट, ओके। सर्कल ड्रॉ करने के लिए तीन मेथड्स हैं, ब्रेसेनेंस एल्गोरिदम, मिड पॉइंट एल्गोरिदम एंड डीडीए एल्गोरिदम। मिड पॉइंट करने, just a minute, I am searching midpoint algorithm. This midpoint algorithm. ग्राफिक्स आप कैसे भी डाउनलोड करो, यूट्यूब से करो या फिर गूगल से कुछ इंफॉर्मेशन ले लो। नहीं तो मेरा ये नोट पैड फाइल है यहाँ पे, लेकिन वो मुझे ही समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है। पहले आपको ये HTTPS स्टडी जो लिखा है, ये URL पे जाना पड़ेगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद वो जो फाइल्स हैं, वो फाइल्स अलग अलग इसमें कॉपी करना है dev cpp के फोल्डर में। हेलो मैम। ये जो नोटपैड फाइल है वो मैंने वीडियो देख के ही लिखा है। तो ये एक क्लासरूम पे मैं अपलोड करूंगी, नहीं तो आप खुद का भी ट्राई कर सकते हैं। एंटर सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल, सेंटर कोऑर्डिनेट्स। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें तीन पैरामीटर की जरूरत होती है। एक तो x1 y1 मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल और उसका रेडियस। सो एंटर सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, तो मैं कुछ 100 एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल 50, ज्यादा नहीं 60। देखो सौरव, यहाँ पे हो रहा है, ग्राफिक्स के मैंने दो तीन प्रोग्राम्स आपको एग्जीक्यूट करके दिखाए हैं। ये प्रोग्राम्स विदाउट ग्राफिक्स तो ड्रॉ नहीं, मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। और यहाँ पे ये जो है ना, ये पार्ट फिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दिया है। तो एक्चुअली सर्कल बन चुका है, लेकिन ये ब्लैक पॉइंट्स, ब्लैक कलर नहीं दिखाई देगा इसके ऊपर, ब्लैक के ऊपर। ओके, थैंक यू गाइस। एनी क्वेरी? अगर कोई क्वेरी है तो बोलो। अटेंडेंस का तो हम 75 अबव तो रखेंगे ही, लेकिन कैसा है कि तीन तीन मतलब एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट को अगर कंटिन्यूसली 3 डेज आप अब्सेंट है, तो उस सब्जेक्ट टीचर को उस स्टूडेंट को कॉल करना पड़ता है कि कंटिन्यूसली अब्सेंट फॉर 3 लेक्चर्स। ऐसा है तो उस कंडीशन में कॉल करना पड़ेगा। और वो कॉल हम ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए कॉलिंग का काम मत करने दो हमें। आप आपका खुद अटेंड करो, अटेंडेंस फिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ग्रुप पे 3:30 को कोड सेंड कर देती हूँ। एनी क्वेरी गाइस? No, ma'am. ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am.